Hello and welcome. Today here we are at Danish Public School, Faksu, and I am Azhar Mahmood Malik, your English teacher here at Danish Public School, Faksu, and here are some bright students of our school. And let's introduce yourself first, all of you. My name is Ms. Bhavati, studying in 8th standard at Danish Public School, Faksu. My field of interests include playing cricket, watching movies, etc. This is Rasia Aman, student of Danish Public School, Faksu, from 8th standard. I like playing badminton and my favorite subject is mathematics. I am Surat Alam, student of Danish Public School, Faksu. I am studying in 8th standard. I am well interested in Urdu as well as English poetry. My favorite poet is Robert Frost. I am Tawin Lak, student of Danish Public School, Faksu. I am studying in 8th standard. My hobbies, volleyball, cricket, etc. and my favorite subject is history. Myself Aruba Anjum, student of class 8, Danish Public School, Faksu. I am well interested in badminton and also I love singing. I am Abreez Malik, student of Danish Public School, Faksu. I am studying in 8th standard. My field of interest include playing cricket, watching movies, etc. Myself Usma Banu, I read in 8th standard at DBS Faksu. My favorite subject is science and I like poetry. My name is Muhammad Adil. I am a student of Danish Public School, Faksu, from class 7. My hobbies are playing cricket and reading books and writing poetry. So now, as Usma said, her favorite subject is science, right? You know, science has made enormous number of inventions and great inventions. One such invention is our smartphone or mobile phone, right? Mobile phone. So there was a time once the people used to send letters to each other for informative purposes. But then suddenly came the mobile phones and everything changed in a flash. And now with an enormous development in this field, where everything is at the palm of our hand, with our mobile phone in our hand, right? अब हम हर कुछ जो है एक मोबाइल फोन, एक हाथ में एक हथेली पे हमारी मोबाइल फोन होके हम हर कुछ एक जगह पे बैठ के देख सकते हैं और कर भी सकते हैं. So today here we are with a debate on smartphone addiction, because despite of so many benefits of this smartphone, or we can say mobile phone, but we see in this modern world that people are like the robots in the control of mobile phones. So today we will understand what is this mobile phone addiction, or we can say smartphone addiction, how can we use this smartphone for beneficial purposes, and how we can get rid of this addiction. So here we start from Misbah. So first question, Misbah, for you. What do you think addiction means, or we can say smartphone addiction? What do you understand by smartphone addiction? Sir, in general, addiction means loss of control on anything. Like when we use mobile phones, we get dependent on it, from buying things, ordering food, anything. We get dependent on it, and that's not good for us. In a limited use, mobile phones are beneficial, but we have to do physical work even. Physical work is, physical work जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे कि पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही फिजिकल चीज़ें करना भी इम्पोर्टेंट है. तो सर, मुझे लगता है कि मोबाइल फ़ोन जो है, इसकी एडिक्शन का मतलब यही है कि हम जब इससे छोड़ते ही नहीं हैं, when we start getting dependent on it, this means smartphone addiction. And ये जो है smartphone addiction सही नहीं है. In a limited use, it is very essential. Limited use में बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो है एक लिमिट होती है, हर एक चीज़ की लिमिट होती है, पढ़ने की लिमिट होती है, खेलने की लिमिट होती है. लेकिन अगर उस लिमिट को क्रॉस कर दें तो अंजाम जो है बुरा भी हो सकता है. थैंक्स. Okay, like Misbah said, smartphone addiction means to get dependent on something.
It could be a substance, it could be an activity. Okay, so now I would like to ask the next student, Rasya Aman. What do you think of smartphone addiction? What plays a major role in a smartphone addiction? सर स्मार्टफोन एडिक्शन जैसे मिसबा ने बोला लॉस ऑफ कंट्रोल, अब हम अपना जो कंट्रोल है वो खो देते हैं किसके पीछे, फोन। जैसे हम जब भी किसी जरूरी काम का करने का सोचते हैं या करने लगते हैं तो हम जो है अट्रैक्ट होते हैं फोन की तरफ कि हम कब फोन को देखेंगे, क्या पता कोई मैसेज आया होगा, किसने कुछ और फनी वीडियोस भेजी होगी, हम उसको मतलब ऐसा क्यों होता है जब हमारी बॉडी में केमिकल होता है डोपामिन, वो जब रिलीज होता है, वो कब रिलीज होता है जब हमें किसी चीज से खुशी मिलती है, तो जब फोन को देखते हैं डोपामिन रिलीज होता है क्योंकि हमें मजा आता है उस चीज को बार बार देखने, तो हम बार बार फोन का इस्तेमाल करते हैं। तो यही So, Rasya Aman said a very important thing here. अगर हम देखें तो एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है when we like something, when we love something to do. Okay, so it is a very important thing. आप सबको ये पता होना चाहिए. Now I will move on to the next student and I will ask you Musarraf that what do you think? हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि ये जो है स्मार्टफोन की क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. फिलहाल हम ये देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्मार्टफोन. सो वुड यू टेल मी? Sir, besides lots of demerits, mobile phone is highly beneficial too. It helps us to communicate with others. It helps us to capture several memorable memories through pictures and videos. Nowadays, we are able to shop online, transact money, order food, and many more by the means of mobile phones. So, for instance, in recent time, COVID-19 is pandemic, while the schools and other educational institutions were closed, where mobile phone was the only way through students continue their studies. Google, YouTube, and online classes help us in such hard time. Very good. So it was a complete answer in itself that in recent times, like schools were shut down, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद थे, लेकिन ये मोबाइल फोन्स जो थे इन्होंने हमें काफी हेल्प की, स्टूडेंट्स को हेल्प की. Mobile phones were helpful that they helped us in the times when schools were shut down. Also offices were closed, offices भी बंद थे और जो लोग ऑफिस जाते हैं उन्होंने ऑनलाइन, सबको पता है. Now I would like to move on the next student. मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन. तो you how much time you give to your mobile phone? आप कितना टाइम स्पेंड करते हो मोबाइल फोन पे? Sir, I am using phone box. Okay. Tony said that he uses on an average mobile phone for 2 hours. Now, what type of content do you like to watch on mobile phone? Sir, playing games and watch reels. Okay, playing games and watching reels. Anyone of you और कोई है anyone else जो मोबाइल फोन रील्स और गेम्स के लिए यूज करता है? So there are lots of students, आप में से बहुत सारे होंगे जो गेम्स और रील्स जो है देखना पसंद करते हैं. बट रील्स में भी बहुत सारी किस्म की रील्स होती है ना. There could be some informative reels, there could be some factual reels जिसमें आपको फैक्ट्स या स्टडीज रिलेटेड होती हैं, और some of them are entertainment, है ना, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए यूज की जाती है. Now I'd like to move on to the next student, Abreez Dale. I want to ask you, how do mobile phone affect a student life or a youth? सर मोबाइल फोन की वजह से, मोबाइल फोन एडिक्शन की वजह से जो है यूथ पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है. यूथ जो है यंग जनरेशन, उसको जो एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं. और एक रिपोर्ट के मुताबिक एक डिसऑर्डर जो है यूथ में पाया है कि रिंग्जाइटी नाम का डिसऑर्डर, मतलब उससे फोन इर्द गिर्द होता भी नहीं है लेकिन उनको फिर भी रिंग सुनाई देती है, फोन इर्द गिर्द होता भी नहीं है. और आजकल जैसा कि हम देख सकते हैं आजकल के चिल्ड्रंस जो है उनको आज से ही स्पेक्टेकल्स लगे होते हैं, और इसका जो मेजर कॉज है वो मोबाइल फोन है.
सो इट वाज अ गुड आंसर। जैसा कि एक बिग इश्यू है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए, बच्चा अभी खाना भी नहीं खाता तब तक जब तक ना उसको फोन दिया जाए हाथ में। और आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लगी होती हैं, एंड इसका बड़ा काज क्या है? मोबाइल फोन। क्योंकि बच्चे बचपन से ही, बच्चों की जो आंखों की मसल्स होती हैं वीक होती हैं, और जब उनको बचपन से ही मोबाइल थमा दिया जाता है तो उनकी मसल जो होती है और ज्यादा वीक हो जाती है, बिकॉज वो जो रोशनी होती है मोबाइल की वो एक अच्छी रोशनी नहीं होती है आंखों के लिए खास तौर पे। सो नाउ आई वुड लाइक टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टूडेंट, उस्मा। व्हाट डू यू थिंक मोबाइल फोन डू विद आवर स्लीपिंग? मोबाइल फोन का क्या असर पड़ता है हमारी नींद पे? Yes, sir, of course. If we keep using mobile phone for a long time at night, obviously we won't get enough time to sleep and remain tired and energyless all the day. Moreover, our eyes will be bloody and feel burning. ओके, तो उस्मा ने कहा कि हमारी आंखें, अगर हम रात को एक कंप्लीट टाइम में नींद नहीं करेंगे तो हमारी आंखें जो है बहुत सारी, हम अगले दिन जो है थका हुआ और एनर्जीलेस भी फील करेंगे और हमारी आंखें भी जलेंगी। सो नाउ आदिल, आई वांट टू आस्क यू दैट इज देयर समथिंग, सम मोर इफेक्ट्स जो हमारी आंखों पे होते हैं, जो मोबाइल फोन एडिक्शन, अगर हम रात को ज्यादा मोबाइल फोन यूज करें तो इससे कुछ और इफेक्ट्स होते हैं? यस सर। सर, जो हमारी आंखों के चारों तरफ जो है ये डार्क कलर के निशान लग जाते हैं अगर हम ज्यादा यूज मोबाइल फोन का करें। ओके, तो डार्क सर्कल्स हमारी आंखों के ऊपर आ जाते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क अरूबा अंजुम। अरूबा अंजुम, आई वांट टू आस्क यू दैट does mobile phone addiction affect our personal relationships, like our friends, like our relatives or family? So Sir, I believe smartphone addiction is a serious threat to our personal relationship. So, for instance, nowadays there may be 4 or 5 persons, a family member in a room, but each and everyone is alone because we don't talk each other, and everyone is lost in her or his smartphone. With the other world in it. सर, उनके सामने उनकी फैमिली होती है, बट उनको ये नहीं लगता कि हमारे साथ हमारी फैमिली है तो हम उनके साथ बात करेंगे, लेकिन वो कुछ अजीब ही दुनिया में बैठे हैं। नो डाउट स्मार्टफोन कनेक्ट अस विद अदर साइड वर्ल्ड एंड मेक अस न्यू फ्रेंड्स, कीप अस कनेक्ट विद the far away friends and relatives, but on the other hand even our family, we don't give enough time to our relationship, and I think it is a big loss of personal relationship. okay, Aruba said that smartphone addiction is a very serious मेजर थ्रेट टू आवर पर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि हम स्मार्टफोन की वजह से दूर के दोस्तों रिश्तेदारों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन स्मार्टफोन एडिक्शन हमें आसपास जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, इवन के हमारे फैमिली मेंबर्स से भी हम दूर हो जाते हैं, बिकॉज हम सिर्फ मोबाइल फोन्स में खोए रहते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या स्मार्टफोन एडिक्शन जो है, क्या ये हमारे एनवायरमेंट पे कुछ इफेक्ट करता है? लाइक once there was a time, if we compare today, the time today with the time 10 or 15 years ago, अगर हम ये कंपेयर करें तो 10 या 15 साल पहले क्या होता था? There were lots of birds chirping around our homes, है ना? ऐसा होता था हमारे घरों के आसपास बहुत सारे जो है बर्ड्स जो है शोर करते थे वगैरह वगैरह, जैसे हमारी स्पैरोज, बहुत सारी स्पैरोज हुआ करती थी, है ना? तो ऐसे बहुत सारे पैरट्स होते थे, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स होते थे। तो आदिल, क्या हमारे जो है एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ता है स्मार्टफोन एडिक्शन का? Sir, mobile phones sometimes become a cause of health hazards. It causes brain tumors, genetic damage, and many other incurable diseases. Sir, nowadays आजकल जो है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे घर के इर्द गिर्द ये बर्ड्स नहीं होते हैं, बिकॉज जो मोबाइल फोन से ये रेडिएशंस
एमिट होती है, वो हार्मफुल होती है इन्वायरमेंट में। जो हमारे इन्वायरमेंट में तवाज़ुन बना होता है वो बहुत हार्मफुल होती है। इन्वायरमेंटल ये जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए वो हार्मफुल होते हैं। सर इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन। Adil said that smartphone addiction is very harmful for the birds, right? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ साल पहले हम देखते थे कि आसपास हमारे घरों के बहुत ज्यादा बर्ड्स होते थे। So it is very harmful and even for the pregnant women and their babies, उन पे कभी कभी अब नॉर्मल बेबीज पैदा हो जाते हैं, होते हैं ना। तो ये भी एक काज है उनका, मोबाइल फोन में भी, मोबाइल फोन का एक मेजर काज है, बिकॉज इससे जो रेडिएशंस इमिट होती हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। उसमें नाउ यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट रेडिएशंस ऑफ मोबाइल फोन? मोबाइल फोन रेडिएशंस के बारे में आपका कुछ पता है आपको? रेडिएशंस क्या होती हैं और कहां से कैसे इमिट होती हैं? यस सर, जो रेडिएशन है ये मोबाइल से निकलती है, ये बहुत खतरनाक होती है। ये दो किस्म की रेडिएशन होती है, एक होती है नॉन आयोनाइजिंग और एक होती है आयोनाइजिंग। जो नॉन आयोनाइजिंग है इसमें बहुत कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 to 3000 होती है। और जो नॉन आयोनाइजिंग है उसमें तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें एक हमारी एक्सरे मशीन भी आती है, ये हमारे लिए पूरे हमारे लिए के छोटे बड़े सबके लिए बहुत खतरनाक वेव्स होती है। ओके गुड। सो स्मार्टफोन रेडिएशन जो होती है, जो टावर्स से निकलती है, एमिट होती है टावर्स से और मोबाइल फोन से, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर द बर्ड्स, इवन ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। नाउ सो लाइक वी डिस्कस्ड, तो स्मार्टफोन एडिक्शन आपने बताया भी कि स्मार्टफोन एडिक्शन जो है इतना ज्यादा खतरनाक होता है, हार्मफुल है हमारे ह्यूमंस के लिए भी एज वेल एज फॉर आवर एनवायरनमेंट। सो इट इज अ बिग थ्रेट, right? So how we could overcome this smartphone addiction? What is the role, Misbah? I want to ask you, what is the role of parents and schools to overcome this smartphone addiction? How could they help their children and students to overcome this smartphone addiction? सर इसमें सबसे पहले जो है सर पेरेंट्स का रोल ही होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही वो पहले लोग होते हैं। पेरेंट्स ही बच्चों के पहले टीचर होते हैं एक्चुअली। पेरेंट्स ही बच्चों को सिखाते हैं, और अगर पेरेंट्स खुद ही मोबाइल पे लगे रहेंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे भी सोचेंगे हमें भी चाहिए। तो सर इसमें पेरेंट्स के अलावा सबसे ज्यादा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर आई हैव नोटिस्ड इट because I was addicted to mobile phones until last Friday. Then I started playing games with my friends like cricket, volleyball. I got more attracted to them. It made me think that these are better than mobile phones and anything we watch on the screen. सर मोबाइल फोन्स बढ़िया है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा एक लिमिटेड यूज होना चाहिए। और सर इसमें जो है जैसे बच्चों को स्कूल में एक गेम पीरियड क्यों होता है, इसमें भी बच्चों को एक्टिविटीज कराई जाती है, खिलाया जाता है, ताकि बच्चे इन चीजों की तरफ भी ध्यान दें। सर एज गौतम बुद्ध सर कि अगर एक इंसान के पास एक अच्छा फिजिकली और जो है अच्छा ये अपने जिस्म होगा, जो आदमी फिजिकली जो है हेल्दी होगा, वही मेंटली हेल्दी पाया जा सकता है। सर और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि अगर हम कोई काम लगातार 21 दिन तक करें तो we get you know it becomes our a habit. सर अगर हम मोबाइल की तरफ 21 दिन तक ध्यान ना दें तो हमें ऐसा लगेगा कि इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर हम बाकी चीजों की तरफ ध्यान दें, सर क्योंकि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई के लिए भी हमारा फिजिकली फिट होना जरूरी है। तो सर फिजिकल एक्टिविटीज आर द बेस्ट थिंग्स which can make us attracted to mobile phones. Thanks. So, Misbah gave a complete answer. What is the role of parents and teachers
to make their children and make their students help to get over the smartphone addiction. So I would like to ask some of you that what are the other ways through which we could get rid of smartphone addiction? Rasya, you. Any suggestion about how could we get over our smartphone addiction? सर पहले तो हमने अपने फ़ोन को जो है खुद से दूर करना है, क्योंकि हमें हमारी जो एज है अभी वो पढ़ाई की है, हमने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। जैसे मिसबा ने कहा कि हमने बाहर जो मतलब गेम्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है फ़ोन में गेम्स खेलना, क्योंकि उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो हम बाहर गेम्स खेलते हैं उससे जो है हम हेल्दी रहते हैं, हम फिट रहते हैं। मतलब जैसे उस्मान ने कहा कि अगर हम ज़्यादा फ़ोन देखते हैं तो अगले दिन हम मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस फील करते हैं, तो उससे नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उस टाइम एक्सरसाइज करें, कुछ और करें, और जो जैसे हमारी दिमाग की जो स्पेस होती है वो बहुत मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम एक टाइम पे 2 गोल अपने दिमाग में रख सके, क्योंकि एक गोल होता है तो हमारी जो दिमागी कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है, लेकिन अगर हम 2 या 3 गोल साथ में रखते हैं तो वो जो है मतलब हमारा काम एक भी पूरा नहीं होता। तो ऐसे जो है मतलब हमने एक गोल रखना है कि हमारा गोल आज ये है कि हमने पढ़ना है, हमने अपना ब्राइट जो फ्यूचर है वो ब्राइट करना है। Okay, Rasya said that we could set one goal for one time. ठीक है, अगर हमें कोई काम करना है तो हमें एक गोल लेके चलना है, हमें बहुत सारी चीजों को हाथ मारने से हमें एक भी हाथ नहीं आएगी। So now I would like to ask Musarata, what are some other activities through which we could come over from this smartphone addiction? कुछ ऐसी एक्टिविटीज और होती हैं जिनसे, जैसे मिर्जा ने बोला कि हम गेम खेल सकते हैं, रास्ते ने बोला कि हमें एक गोल सेट करना चाहिए। सो व्हाट आर योर टेक ऑन दिस? सर अगर हमें मोबाइल एडिक्शन कम करनी होगी तो हमें जिस टाइम पे हम फोन का यूज करते हैं उस टाइम अगर हम किसी दूसरी चीज की तरफ ध्यान दें, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग और एक्सरसाइज और दूसरी गेम्स जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें तो ये जो है हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। अगर हम मोबाइल फोन का यूज करें वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। Okay, so now I would like to ask you, Tony, what do you think that how could we come over of this smartphone addiction? One single point, एक आपकी तरफ से एक पॉइंट मिलना चाहिए, हम एक पॉइंट जोड़ के एक कंप्लीट एक अंडरस्टैंडेबल जो है एक आंसर बनाएंगे और हम ये सब ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये हम अपनी लाइफ में इन चीजों को एक्चुअली अपनी लाइफ में लाएं ताकि हम स्मार्टफोन एडिक्शन को कम कर सकें। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सर आमतौर पे हमें अपना फोन साइड रखना चाहिए। जब हम कोई काम करते हैं तब फोन पे नोटिफिकेशंस आती हैं, हम बार बार फोन चेक करते हैं नोटिफिकेशन, हालांकि वो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन दिन भर नोटिफिकेशन अपडेट चेक करते रहते हैं, इसलिए हमें फोन की नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना चाहिए। गुड, ये भी एक, हालांकि ये एक छोटा सा पॉइंट है बट इट कुड बी बेनिफिशियल, हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करने वाला हो सकता है। बिकॉज अगर हम अपने फोन को थोड़ा अपने से दूर रखें और ये नोटिफिकेशन ऑफ रखें और बार बार फोन को चेक ना करें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क आदिल, how could we come over of this smartphone addiction and how we could get rid of this smartphone addiction? Sir, as we know that mobile phone is a very bad experience to us if we get addicted to it. Sir, we should use it in limit and a timetable can actually help us to lessen its use. Sir, we should turn off mobile phone notifications. और सर जब हमें कोई काम करना होगा, जैसे तौहीद ने कहा कि हमें इस मोबाइल फोन को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, अपने नजदीक नहीं रखना चाहिए, और जब चार्ज करना हो, सोना हो और तब उसे अपने दूर रखना चाहिए। ये जो है हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल है इसका लिमिट में यूज करने के लिए। Apart from this, we should play more outdoor games like cricket, football, volleyball, etc. Instead of using mobile phone, we could do exercise.
instead of mobile phone games, sir, time consuming and financial risk as well, along with the time wastage and physical health distortion should be uninstalled. Okay, it is a good point. लास्ट वाला पॉइंट जो है आदिल का, ये एक स्पेशल पॉइंट है कि आजकल हमारे फोन्स में आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जिनमें फाइनेंशियल रिस्क भी है ना, हमारा फाइनेंशियल रिस्क भी है और टाइम वेस्टेज भी होता है। जैसे हमारा आजकल ड्रीम 11 जो काफी स्टेट्स में आपके बैन भी हो चुका है, ड्रीम 11 है, पबजी है और ऐसे फ्री फायर वगैरह ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं जिनमें फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है और बच्चे जो है ज्यादातर यूथ जो है उनमें ज्यादातर इंडल्ज दिखाई देते हैं। तो उन सब चीजों से हमें क्या करना चाहिए, वैसी जैसी एप्स को फोन में नहीं रखना चाहिए। मेरा पेरेंट्स से भी यही जो है एक रिक्वेस्ट है कि अपने फोन्स में ऐसी जैसी एप्स को ना रखें और बच्चों को ये सिखाएं कि ये सब चीजें जो है फाइनेंशियली रिस्की हैं और उनकी हेल्थ डिटीरियरेशन में काफी बड़ा जो है रोल प्ले करती है। इसलिए अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सब चीजों से बाहर निकल के हमें फिजिकल वर्क अपनी पढ़ाई पे टू मेक अवर फ्यूचर ब्राइट, और जैसे कि अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है ना, इट वॉज अ कंप्लीट डिस्कशन। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि मोबाइल फोन इज मतलब हाउ हार्मफुल और हाउ एडवर्स मोबाइल फोन इज, राइट, कि मोबाइल फोन हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और अगर हम इसको कम करना चाहते हैं, इसके एडिक्शन को अगर हम इससे फायदा उठाना चाहते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मोबाइल फोन इज अ ब्लेसिंग एज वेल एज अ कर्स आल्सो। मोबाइल फोन इज अ फेथफुल सर्वेंट बट इट इज अ बैड मास्टर आल्सो, है ना। मोबाइल फोन हमारे लिए एक गुलाम की तरह भी हो सकता है अगर हम इसको यूज उस तरीके से किया जाए, और ये हमारा एक मालिक भी बन सकता है, मतलब हमें कंट्रोल करने वाला भी बन सकता है, लेकिन बैड मास्टर, सही वाला नहीं, बैड मास्टर बनेगा। ये हमें गलत रास्तों पे हमारा वक्त जाया करेगा, हमें गलत रास्तों की तरफ ले जाएगा और हमारा फ्यूचर बिगाड़ देगा। मेन जो है हमारा अभी जो है मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज अवर फ्यूचर, योर फ्यूचर अवर फ्यूचर, हम सबका फ्यूचर, हमारे एनवायरमेंट, हमारी सोसाइटी का फ्यूचर। सो I remember a quote of Mohandas Karamchand Gandhi, the father of nation, that be the change you wish to see in the world. हमें खुद वो चेंज बनना है। अगर हमें कोई चेंज सोसाइटी में लानी है तो सबसे पहले we have to do it in our own individuality। हमें अपनी इंडिविजुअलिटी से स्टार्ट करना है, अपनी पर्सनैलिटी में वो सब कुछ लाना है अगर हम वो चेंज लाना चाहते हैं। सो यहाँ से जाके अपने स्कूल्स में, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिलीज में हमें क्या करना है, हमें ये पैगाम देना है, हमें ये मैसेज देना है दैट वी शुड नॉट यूज मोबाइल फोन इन अ रॉन्ग वे। हमें इसको एक अच्छे वे में इस्तेमाल करना चाहिए दैट कुड मेक अवर फ्यूचर अ ब्राइट फ्यूचर एंड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल, जो हमारी लाइफ जो कंफर्टेबल बना सकती है, एंड मेक आवर सोसाइटी अ बेटर सोसाइटी। गुड, है ना। एक सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी में बेटर सोसाइटी बनाएगी, इंप्रूव सोसाइटी बनाएगी। नहीं तो अगर हम कितने भी डेवलप्ड होंगे, अगर हम इन द कंट्रोल ऑफ फंड्स रहेंगे, वी कुड नॉट डू एनीथिंग। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस डिबेट एंड this is our message to all the society and all the people. So all of you with me, we will say a thank you for to all the people from our school and our servers. So thank you very much.